Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Before करें। meditating word of God, let's humble ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अपने आप को नम्र करें। We should believe our Lord God is alive. हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है। Father, we bow down ourselves before you. पिता, हम आपके सम्मुख अपने आप को झुकाते We हैं। thank you for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। And we are sitting in your presence just because of our Lord. और हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं केवल हमारे प्रभु की वजह से। If there is sin, forgive us. यदि कोई पाप है तो हमें माफ करो। Washed with thy blood. आपके लहू से धो दो। Christ, we believe in you. मसीहा, हम आप में विश्वास करते हैं। And we believe you forgive our sin when we confess our sin. और हम यह मानते हैं कि जब हम हमारे पापों को कबूल कर ले तो आप हमें माफी देते हो। We need you. हमें आपकी जरूरत है। We are here to study your word. हम यहाँ पर आए हैं आपके वचनों का अभ्यास करने के Open लिए। our ear. हमारे कान खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो So that we can see your glory. ताकि हम आपका महिमा देख पाए। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So I'm not going to take more time. तो मैं ज्यादा समय लेने वाला नहीं हूँ। We are studying gospel Jesus parables. हम यीशु मसीह के दृष्टांतों का अभ्यास कर रहे And this is हैं। the 31st parable. और यह 31वां दृष्टांत है। This is the story we can read from Luke 7 chapter. यह कहानी है जो हम लूका के सुसमाचार 7वें अध्याय से पढ़ सकते Gospel हैं। of Luke 7 chapter 36 to 50 verse. लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 36 से 50 वचन In तक। this story, Jesus Christ gave a parable. यह कहानी में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। He went at the house of a Pharisee. प्रभु यीशु फारसी के घर में गया। This was a religious leader and he invited Jesus. यह एक धार्मिक आगेवान थे, एक व्यक्ति था और उसने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया Come and dine with me or come and have meal. कि मेरे साथ आ और मेरे साथ भोजन कर। And then further, Jesus Christ gave a parable. और फिर आगे यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया That there was one creditor and there were two debtors. कि एक पैसा देने वाला व्यक्ति था और उसके दो कर्जदार थे। And every Christian have know this story and have ever read this story. हर एक मसीह व्यक्ति ने यह कहानी पढ़ी है और उन्हें पता है। Okay, let's read from verse 36. आइए 36वें वचन से पढ़े। One of the Pharisee who was a Jewish leader who take care of Jew, who follow the law of the Moses, this person. एक फरीसी व्यक्ति था जो मूसा के नियम शास्त्र का पालन करता था, आगेवान था। And he asked Jesus to dine with him. और उसने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया उसके साथ भोजन करने के He लिए। shared his desire. He begged Jesus to come. उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया और यीशु से विनती की कि आओ, Come for lunch. कि खाना खाने के लिए आओ। Or some might say that it was a dinner time. और कोई ऐसा कह सकते कि वह शाम का खाना हो सकता है। And Jesus went and took the place. और And he went in the house and he took the place. और यीशु मसीह घर में गए और अपनी जगह ली He sat on the table. और टेबल पर बैठे। Verse 37. 37वां वचन। Where the people were serving and the people were eating. वहां पर लोग खाना परोस रहे थे और कुछ लोग खा रहे थे। Just then a woman who was an outcast in the town, or she was a sinner in that town, she came. वहां पर एक स्त्री जो कोई शहर से बाहर की या तो एक पापी स्त्री थी, वह आती है। So here the writer says that the woman who stood before Jesus Christ, she was a well-known sinner woman. तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो यीशु मसीह के सामने वह स्त्री आई, वह ऐसी पापिनी स्त्री थी कि हर कोई उसे जानता था। And she came behind Jesus Christ and stood there. और यीशु मसीह के पीछे आई और वहां पर खड़ी रही। And Jesus Christ was sitting on the table, at the table. यीशु मसीह टेबल पर बैठे थे। And she brought even an
alabaster jar of perfume. और संगे मरमर के पात्र में वह एक इत्र लेकर आई। This alabaster jar, alabaster it means stone, one type of stone. यह जो आल्बस्टर शब्द है वह संगे मरमर बोलते हैं उसे, एक प्रकार का पत्थर होता है। And that in that box she brought perfume. और वह पात्र में उसके अंदर वह इत्र लेकर आई, अत्तर लेकर आई। And that was a oil with fragrance. और वह एक तेल था, खुशबूदार तेल। And she stood behind Jesus Christ. और यीशु मसीह के पीछे वह खड़ी हुई। If you read further, it says she found out where Lord is been invited. यदि आप आगे पढ़ो तो उस स्त्री ने ढूंढ निकाला था कि यीशु मसीह कहाँ गए हैं, उन्हें कहाँ बुलाया गया है। And she came to know that Jesus Christ went at Pharisee's house. और उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह फरसी के घर में गए हैं। And so she found out where the Lord is and she came in the house. तो यीशु मसीह कहाँ है उसका पता लगाया उसने और फिर उस घर में आई। Verse 38. 38वां वचन। Near his feet, Jesus' feet, she was weeping, standing and weeping. और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर वह रोती रही। When she began to make her wet, then she began to make Jesus' feet wet with her tears. उसके फिर वह यीशु के पांवों को आंसुओं से भिगोने लगी। And she was crying, standing behind the Lord. और यीशु के पीछे खड़ी होकर रोने लगी। And she dried them with her hair of her head. और फिर अपने सिर के बालों से उस पाँव यीशु के पाँवों को पोंछने She लगी। was wiping out her tears from the Lord's feet. प्रभु के पाँवों पर से अपने आंसुओं को वह अपने बालों से पोंछ रही थी। And also repeatedly repeatedly kissing Jesus' feet. और यीशु के पाँवों को बार बार चूम रही थी। And anoint that feet with that perfume. और वह पैरों पर वह अत्तर लगा रही थी। So she was doing such a thing, and the Pharisee and the people were seeing this. तो वह स्त्री इस तरह से बर्ताव कर रही थी और फरीसी लोग देख रहे थे। And this Pharisee, the man, if you further read, the name is Simon. और फरीसी का नाम यदि आप आगे पढ़ो तो उसका नाम समोन था। This Simon, that one was Pharisee, and he has invited Jesus Christ. यह समोन था जो फरीसी था और उसने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था। And he saw this woman standing behind Jesus Christ and kissing Jesus' feet. और उसने देखा कि यीशु के पीछे खड़ी होकर यीशु के पांवों को चूम रही है। And this Pharisee was not interested in Jesus Christ, but he was interested in this woman. यह फरीसी यीशु मसीह में उसका कोई मन नहीं था, लेकिन उस औरत के पीछे उसका मन लगा And हुआ a था। question arose in this Pharisee's heart. और यह फरीसी के हृदय में एक सवाल उठा। And he thought such thing, saying here, और उसने ऐसा सोचा और फिर कहा, if this Jesus has been a prophet, कि यदि यह यीशु मसीह भविष्यवक्ता होते then he would know who she is standing. तो यीशु मसीह जान लेते कि यह आई है वह औरत कौन है। Who is that woman and what manner of this woman is? ये जो आई है वहां पर वह स्त्री कौन है और उसकी चाल चलन कैसी है। So here we see this Pharisee is interested and he very well know who this woman is. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी उसे उस स्त्री में दिलचस्पी है और उस स्त्री को वह अच्छी तरह से जानता है। This man recognized that this is a well-known city prostitute, or she is a well-known sinner. और यह फरीसी को पता है कि शहर की यह नामांकित या नामचीन एक पापिनी स्त्री है। And Jesus Christ, but here we see he's failed to recognize this Jesus, the prophet. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यह फरीसी यीशु मसीह को पहचानने में निष्फल हो गया। Jesus Christ was a prophet. यीशु मसीह भविष्यवक्ता थे। This Pharisee didn't recognize that Jesus is a prophet, but he doubted Jesus. यह फरीसी ने उसे पहचाना नहीं कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, लेकिन यीशु में संदेह किया। And that fellow, he recognized this woman is a sinner.
और उस फरसी ने उस स्त्री को पहचान लिया कि वह पापी है, गणिका है। And he said in his mind, this Pharisee, this Simon, he said in his mind, और ये फरसी ने, समोन ने अपने मन में कहा, if Jesus were a prophet, he would definitely know who is this lady. कि यीशु मसीह यदि भविष्यवक्ता होते तो सच में वह स्त्री कौन है जान लेते थे। So here we see the Pharisee, they very well know about the prophets. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी लोग भविष्यवक्ताओं के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। Prophet is the one who very well know who the person is. भविष्यवक्ता तो वह व्यक्ति है कि जो सामने वाले को देखकर ही पहचान लेता And he can है। even know the name and the heart of the person. और भविष्यवक्ता तो नाम भी बता सकता है, उसे पता होता है, और व्यक्ति के हृदय के बारे में भी उसे पता होता What the है। people are thinking, that can the prophet can find out. और लोगों के दिल में क्या सोच है, वे क्या सोच रहे हैं, यह बात भी भविष्यवक्ता ढूंढ निकाल सकते हैं। So this Pharisee had that bad thought about Jesus Christ. तो यह फरसी के अंदर एक यीशु मसीह के बारे में खराब विचार था। The one who invited Jesus Christ, 39 verse. जिसने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था, 39वां वचन। He said to himself, यह देखकर यह फरसी जिसने यीशु को बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, अपने आप से कहने लगा, had this man been the prophet, he would had known who and what sort of woman is she touching Jesus Christ, and she is a sinner. यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है। So your Pharisee was able to recognize and identify the sinner, तो यहाँ पर फारसी जो था वह पापी को तो पहचान सकता था, देख सकता था, but he was unable to recognize Jesus Christ and he doubted Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह को पहचानने में वह नहीं पहचान पाया और संदेह करने लगा। Now Jesus Christ, I will say, he understood what is going in the heart of this Pharisee. अब मैं कहूंगा कि यीशु मसीह समझ गए कि फरसी के हृदय में क्या चल रहा था। More evil thought arise in this Pharisee. He stopped and said to this Pharisee, फरसी के मन में और ज्यादा खराब विचार आने लगे, उससे पहले यीशु ने उसे रोका और यह कहा, and he addressing him, Jesus said, उस फरसी को के साथ बात करते हुए यीशु ने कहा, now Simon, he said Simon. कि हे समोन। Simon, it means in Hebrew it means listen or hear. समोन जो इब्रानी भाषा में यह शब्द का अर्थ होता है सुन। His name was Simon, उस फरसी का नाम था समोन, and Jesus immediately said, Simon, Simon. और यीशु ने तुरंत ही कहा, सिमोन सिमोन। It means listen my voice. उसका अर्थ होता है कि मेरी ओर ध्यान लगा, मुझे सुन, Give ear to me. तेरे कान मुझ पर लगा। Don't think any wrong of what is going in your heart. तेरे हृदय में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ गलत मत सोच। And Simon replied, Master, say on. और समोन ने जवाब दिया कि गुरु आप कहो। This Simon, he thought that Jesus Christ is a common man. यह समोन ने ऐसा सोचा कि यीशु मसीह तो एक साधारण व्यक्ति है। And but he said, Lord or teacher, लेकिन समोन ने कहा कि प्रभु या गुरु, what do you want to say? आप क्या कहना चाहते हो? And further Jesus Christ started the parable in verse 41. और आगे 41वें वचन में यीशु मसीह ने दृष्टांत कहना शुरू किया। There were two people who were in debt to a money lender. कि कोई एक महान मालिक था और उसके दो देनदार थे। So one creditor had two debtors. एक महाजन व्यक्ति था जिसके दो देनदार थे, कर्जदार थे। And this both debtors, one owed 500 silver coin and another had 50 silver coin to give their master. और यह दोनों जो कर्जदार थे उसमें से एक को 500 चांदी के सिक्के का कर्जा था अपने मालिक के लिए और दूसरा 50 चांदी के सिक्के का कर्जदार था। One dinar or one silver coin, it means it is value of one wages of one day. एक दिनार या तो एक चांदी का सिक्का, उसकी कीमत एक पूरे दिन की जो मजदूरी की कीमत लगती है उतनी होती है। And these both debtor, they had to give, they were under debt. और यह दोनों कर्जदार उस महाजन के कर्जदार थे, उसके अधीन थे। Verse 42. 42वां वचन। Further we read verse that both were unable to pay or return to that
creditor. और आगे हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि यह दोनों कर्जदार के पास अपने मालिक को वापस देने के लिए कुछ भी नहीं था। So the creditor called this both debtor तो मालिक ने यह दोनों कर्जदार को बुलाया, because he found that they are not going to pay anymore. क्योंकि मालिक को पता चला कि उनके पास कुछ है ही नहीं वापस देने के They लिए। have nothing to give. उनके पास कुछ है नहीं और वे वापस नहीं देंगे। And so this lender or the creditor, he called both and forgive them both. तो यह मालिक ने दोनों कर्जदार को, देनदार को बुलाया और दोनों को माफ कर दिया। So here we see both the debtor lost their time and it was impossible to pay even the due. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के लिए असंभव था वह कर्जा Time has चुकाना। lost. और उनका समय भी गवाया था उन्होंने, And it was impossible to pay back or even to pay the due. और इतना समय गवाने के बाद भी उनके लिए असंभव था कि वह अपना कर्जा मालिक को चुकाए। So the creditor, he took he can make them slave, but he forget. तो जो लेनदार था वह दोनों को तो गुलाम या दास बना सकता था, लेकिन दोनों को क्षमा कर दिया। The creditor, even he could get more interest, or he would say for interest. लेनदार जो था वह उन दोनों कर्जदार से ब्याज तक मांग सकता था, ब्याज कम से कम ब्याज तो ले सकता था। But he forget लेकिन वह भूल गया and forgave. और माफ कर दिया। So here Jesus Christ, he is talking about a good creditor or good lender. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक भले लेनदार के बारे में, भले महाजन के बारे में बात कर रहे Who हैं understand the people who are under debt. कि जो लोग कर्जदार होते हैं, ऐसे लोगों को जो समझने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा यह व्यक्ति था। And this creditor even know that the people are not able to even return. और यह लेनदार को यह पता भी लगा कि मेरे कर्जदार मुझे वापस नहीं दे पाएंगे, And so he forgave them both. इसीलिए उसने दोनों को माफ कर दिया। So Jesus Christ ended this parable and then asked a question to this Simon. तो यीशु मसीह ने दृष्टांत पूरा किया और समोन से सवाल किया, Which of them do you think will love the master more? कि उन दोनों में से कौन मालिक से अधिक प्रेम रखेगा? Who will show more love? Just answer me, Simon. दोनों में से कौन ज्यादा प्रेम बताएगा? समोन, तू मुझे जवाब दे। Simon was very well interested in this story. और समोन को यह कहानी में बहुत अच्छा लग रहा He था। forgot that woman. He forgot Jesus is a prophet or not. और उस औरत को भी समोन भूल गया और यीशु भविष्यवक्ता है या नहीं, यह बात को भी भूल गया। And he thought about the parable and answered that I suppose the man whom the more greater was in debt, who has been forgiven, will love more. समोन ने दृष्टांत के बारे में सोचा और उत्तर दिया कि मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है, वह ज्यादा प्रेम करेगा जिसका अधिक माफ हुआ है। So Jesus said, who love me more? तो यीशु ने कहा कि मुझसे कौन प्रेम ज्यादा करता है? The one who, and the answer was, the one was under the great debt. और उसका जवाब यह था कि जो बहुत भारी कर्जे में या कर्जदार है वह। And still he didn't understood what Jesus is saying. फिर भी समोन समझ नहीं पाया कि यीशु मसीह क्या कह रहे Jesus हैं। said, you gave the right answer. यीशु ने कहा कि तूने सही जवाब दिया। And then turning to that woman, Jesus said to Simon, verse 44. और फिर उस औरत की ओर यीशु मसीह मुड़े और समोन से कहने लगे, Do you see this woman? कि समोन, क्या तू इस औरत को देखता I है? came into your house, you gave me no water to wash my feet. मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मुझे मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। But she had made my feet wet with her tear and dried up with her hair. परंतु इस स्त्री ने मेरे पांवों को आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछे। So your Lord Jesus answered Simon that you forget to please me, you forget to love me. तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने समोन को जवाब दिया कि तू मुझे खुश करने में और
welcome. You didn't welcome me. मेरा स्वागत करने में निष्फल हो गया। You didn't welcome me and honor me as a master. Come to my house. और कोई मालिक जैसे तेरे घर में आया है उस तरह से मालिक का तूने सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया। You didn't recognize that I'm a prophet and I should be honored. तूने पहचाना नहीं कि मैं भविष्यवक्ता हूँ और भविष्यवक्ता को उसका सम्मान मिलना चाहिए। You are a Jew Pharisee, तू एक religious teacher. यहूदी व्यक्ति है, धार्मिक शिक्षक और फरीसी है। Still you failed to show your hospitality. फिर भी मेहमान गति के विषय में स्वागत करने का तू भूल गया, उसमें निष्फल हो गया। So that was one sin. तो वह एक पाप था And I forgive you. और मैं तुझे माफ करता हूँ। Now even if you come back and you give me water to wash my feet, already my feet are washed. और अब तू पछता कर यदि मुझे पानी दे मेरे पैर धोने के लिए तो कोई काम का नहीं, क्योंकि मेरे पाँव धुल गए हैं। So that you are under debt. तो अब तू इस कर्ज में आ गया। More 45 verse Jesus said, और आगे 45वें वचन में यीशु ने you कहा, did not give me keys when I entered in your house. मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे चुमा नहीं। But see this woman, लेकिन इस औरत को देख, from the moment I came in, had not ceased to kiss my feet. जब से तेरे घर में मैं आया हूँ तब से मेरे पाँवों को चूमना उसने छोड़ा नहीं। Another Jesus Christ gave this Simon understanding और अधिक प्रभु यीशु ने समौन को समझदारी दी। that you forget to kiss a guest. तू मेहमान को चुंबन करना भूल गया। Verse 46. 46वां वचन, You even not anoint even my head with the oil. तूने मेरे सिर पर तेल भी नहीं मला। But look at this woman. लेकिन इस स्त्री को देख, She is anointing my feet with precious perfume. उसने मेरे पाँवों को मूल्यवान इत्र से मला है, भिगोया है। So here we see Simon 3 mannerless nature. तो यहाँ पर हम समौन के 3 ऐसे अयोग्य वर्तन को देखते हैं। He was thinking about that sinner woman समौन वह पापी स्त्री के बारे में सोच रहा था, as if Lord doesn't know who she is. जैसे कि प्रभु को पता नहीं है कि वह स्त्री कौन है। But by this parable, Jesus made this Simon understood that I know that she is sinner and I even know who you are. और लेकिन इस दृष्टांत से प्रभु यीशु ने समौन को यह सिखाया, कहा कि मुझे पता है वह स्त्री कैसी है और तू कैसा है यह भी मुझे पता है। You both are under debt. तुम दोनों कर्जदार हो। Simon, you failed to recognize me as a prophet. समौन, तू मैं भविष्यवक्ता हूँ यह पहचानने में निष्फल हो गया। But you were able to recognize this woman, everyone knows. लेकिन यह स्त्री को जैसे हर कोई जानता है वैसे तू पहचानता है। Simon, you didn't give me water to wash my feet. समौन, तूने मेरे पाँव धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया। You did not even kiss me when I entered in your house. तेरे घर में जब मैं आया तो तूने मुझे चूमा नहीं। So this all thing was going in Jesus' heart, but this Simon didn't understood and he didn't saw Jesus. तो ये सारी बातें यीशु के मन में चल रही थी, लेकिन समौन नहीं समझ पाया, देख नहीं पाया। Simon was interested in this about who Jesus is. यीशु कौन है उसके बारे में समौन को दिलचस्पी थी। But what is going in Jesus' heart that the Pharisee was failed to understand. लेकिन यीशु के हृदय के अंदर क्या चल रहा था, हो रहा था, वह समझने में वह फरीसी निष्फल हो गया। Jesus Christ compared him with that woman. यीशु मसीह ने समौन को उस स्त्री के साथ तुलना की। She is not ceased kissing my feet and you didn't even kiss me. कि वह मेरे पैरों को चूमने से रुकती नहीं और तूने मुझे चूमा भी नहीं। You did not anoint my head with oil. तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला। But she herself anointed my feet with fragrance oil. लेकिन उसने मेरे पाँवों को खुशबूदार इत्र से मला है। So here we see Jesus showing mistake of this Pharisee. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फरीसी की गलती को यीशु मसीह बता रहे हैं। You call me master or teacher, what you want to say? तू मुझे मालिक या शिक्षक कहता है, उस वह कहने में तू क्या कहना चाहता है? You said yes master or yes teacher. What is wrong? तूने कहा कि हाँ मालिक, हाँ गुरु, गलत क्या है? When I said Simon, listen me, I want to say something, and you said master, yes, say on.
जब मैंने कहा कि समौन सुन, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, और तूने कहा कि हाँ गुरु आप कहो, and you said me master, और तूने मुझे गुरु कहा, but in your heart you didn't recognize me as a prophet. लेकिन अपने हृदय से तूने यह जाना नहीं कि मैं भविष्यवक्ता हूँ। 47 verse. और 47वां वचन, I know this woman is sinner, but her great sin showed that her sin were many. कि मुझे पता है कि यह स्त्री तो पापी है, लेकिन उसके जितने जो बहुत पाप थे वह क्षमा हो गए हैं। Many sins have been forgiven, so she loved me much. बहुत पाप थे उसके जो क्षमा हुए हैं, इसीलिए वह ज्यादा प्रेम करती And है। see how she is showing her love by pouring oil and anointing my feet. तो देख कि वह मेरे पैरों पर अत्तर लगाकर और आंसू बहाकर कैसे अपना प्रेम दिखा रही है। Look how she is kissing my feet and saying thank you that you came in my town. और देख कि मेरे पैरों को चूमकर वह कह रही है कि प्रभु आप मेरे शहर में आए, आपका धन्यवाद। And Jesus taught, one who is pardoned little, he will love little. और यीशु ने सिखाया कि जिसका थोड़ा माफ होता है वह थोड़ा प्रेम करता The है, one who is more forgiven will show more love. और जिसके ज्यादा पाप माफ होते हैं वह ज्यादा पाप दिखाता है, ज्यादा प्रेम दिखाता है। And then Jesus turned to this woman, verse 48, और 48वें वचन में फिर यीशु यह स्त्री की ओर मुड़ते हैं your sin have been forgiven. कि तेरे पाप क्षमा हुए, ऐसा कहा। More Lord added in verse 50, और 50वें वचन में प्रभु ने आगे कहा your sin are forgiven and your faith has saved you. कि तेरे पापों को माफी मिली है और तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। Go in peace. अब तू शांति में जा। So then Jesus shared this parable. यीशु ने जब यह दृष्टांत बताया, If we study, यदि हम अभ्यास करें there are few questions. तो कुछ सवाल है इसमें। Why Lord gave such example here? प्रभु ने ऐसा उदाहरण यहाँ पर क्यों दिया? Just to make remember that Simon, you are under debt and you forget to welcome me. केवल यह याद दिलाने के लिए कि समौन तू कर्जदार है और मेरा स्वागत करने में तेरे से गलती हुई है। And even I want to prove that I am a prophet. I will say a parable. और मैं भविष्यवक्ता हूँ यह साबित करने के लिए मैं एक दृष्टांत कहना चाहता That हूँ I know she is sinner. कि मुझे पता है कि यह स्त्री पापी है। Why Lord gave such parable of debtors? प्रभु ने दो कर्जदार का दृष्टांत क्यों दिया? To show that both are unable to save themselves or unable to give their what they owed. यह बताने के लिए कि दोनों कर्जदार है और उनको जो देना है मालिक से दोनों नहीं दे सकते हैं, अपने आप को आजाद नहीं कर सकते हैं दोनों। Just by believing Jesus Christ, केवल यीशु मसीह में विश्वास करके God has sent me कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने भेजा है, and believe that God has sent me to forgive my sin. और ऐसा वे मान ले कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है उनके पापों को माफ करने के लिए। And that woman understood God's plan. और वह स्त्री परमेश्वर की योजना को समझ गई। God sent Jesus Christ and here I am a sinner and forgive me. He came asking forgive me. कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और मैं यीशु मसीह के सामने आई हूँ ताकि यीशु मसीह मेरे पापों की माफी दे। But this Simon Pharisee, he understood not Jesus Christ as a prophet. लेकिन समौन फरोसी यीशु मसीह को वह भविष्यवक्ता है ऐसा समझ नहीं पाया। Why the creditor has forgive those both debtor? और लेनदार ने दोनों देनदारों को क्यों माफ किया? God only forgive those who are unable to pay him back. परमेश्वर केवल ऐसे लोगों को माफ करते हैं जो लोग परमेश्वर को वापस कुछ दे नहीं सकते। There are people who want to who need forgiveness and so they go for 40 fast. ऐसे भी लोग हैं कि जो जिनको पापों की माफी की जरूरत है और इसीलिए वे बदले में 40 उपवास देते हैं। Even they kill donkey, monkey, horse, goat and ox. और वे गधे को, बंदर को और
घोड़े को, ऐसे जानवरों को भी मार डालते हैं। Just they give a sacrifice so that they be forgiven. वे इस तरह से बलिदान देते हैं ताकि उनको माफी मिले। They think that we have too much to give God and we can be free from our sin. वे ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा है उसमें परमेश्वर को देने के लिए, और ऐसे दे देंगे तो हमारे पापों की माफी मिल जाएगी। But they don't understand that there are many debts, there are many, we are unable to give Him. लेकिन वे समझते नहीं कि हम कर्जदार हैं, और ऐसे कर्जदार हैं कि परमेश्वर को कुछ चुका नहीं सकते। Only God can forgive us. केवल परमेश्वर हमें माफ कर सकता So है। those who are unable to pay return or unable to go give penalty for their sin, only those who understand, for them there is forgiveness. तो जो लोग अपने पापों की क्षमा पा नहीं सकते, उसके बदले में कुछ चुका नहीं सकते हैं, और यह बात वे समझ जाते हैं, तो ऐसे ही लोगों को परमेश्वर माफी देते हैं। Why 550 debt? Jesus talked about this. 500 का कर्जा और 50 का कर्जा, यह दो बात यीशु मसीह ने क्यों कही? To show that there is more and there is less. Yeah, There are more and less, but they are under debt. यह दिखाने के लिए कि किसी का ज्यादा कर्जा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन दोनों कर्जदार तो होते ही है। Simon you cannot pay back even if it is 50. कि समौन, यदि तेरा 50 भी हो तो भी तू खुद वापस दे नहीं सकता है, Because time is over. क्योंकि समय पूरा हो गया Now है। if you show hospitality after my teaching, it's of no value. और मेरी शिक्षा के बाद यदि तू आक्ता स्वागता कर ले तो भी उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, Because you are under debt and I forgive you. क्योंकि तू कर्जदार है और मैंने तुझे माफ कर दिया। Now nothing can change even if you give water to wash my feet, because already it is washed. क्या और यदि तू मेरे पाँव को धोने के लिए अब पानी भी दे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पाँव धुल चुके हैं। No need to kiss me as when I was at door, but now I am sitting at the table. और अब जब मैं टेबल पर आकर बैठ गया हूँ तो मुझे चूमने का कोई मतलब नहीं, जब द्वार पर था तब करने की जरूरत You थी। lost that welcome time. वह स्वागत करने का समय तूने गवा दिया। And now no need to pour oil. Already my feet are been washed with that precious oil. अब मेरे पैरों पर भी कोई तेल मलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह मूल्यवान इत्र से मेरे पैर अब धो चुके हैं। In parable, Lord Jesus Christ was trying to teach two things. दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह दो बातें सिखाना चाहते थे। Believe all are under debt, and He- there is you, and now you are under debt, and there is no nothing to pay him back. You have nothing to pay him back. कि यह बात मानना है कि हर कोई कर्जदार है, और समोन तू भी समझ ले कि तू भी कर्जदार है, और वापस कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है। When someone love you, and if you love him, it is of no value. जब कोई आपसे प्रेम करे और आप भी उसे प्रेम करो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, Because the one who had loved first, we are under debt of that. क्योंकि जिसने पहले प्रेम किया है उसके हम कर्जदार है। So your Lord Jesus taught two things. तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने दो बातें सिखाई। If you are forgiven, then love God यदि तुम्हें माफी मिली है तो परमेश्वर से प्रेम करो and believe Jesus Christ. और यीशु मसीह में विश्वास करो। Why this doubt question arose in this Pharisee's heart? यह फरीसी के हृदय में यह शंका का सवाल क्यों उठा? Because he saw this woman whom Lord was not stopping her when she क्योंकि- kissed Jesus' feet. क्योंकि समोन ने देखा कि यह औरत जब यीशु के पैरों को चूम रही थी तो यीशु ने उस औरत को रोका नहीं। So the lesson from this parable, तो इस दृष्टांत से हमें जो पाठ सीखना मिलता है, to love God and to believe in Him. परमेश्वर से प्रेम करना और उसमें विश्वास करना। That woman believed Jesus is the prophet. वह स्त्री ने विश्वास किया कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, And so she came to Jesus and she asked for forgiveness. इसीलिए वह यीशु मसीह के पास आई
और माफी मांगी and she loved Jesus. और उसने यीशु से प्रेम किया। But Simon, he didn't believe Jesus and also he didn't love Jesus. लेकिन समोन ने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया और यीशु मसीह से प्रेम भी नहीं किया। And so Jesus Christ forgave him by this parable. तो इसीलिए यीशु मसीह ने समोन को यह दृष्टांत सुनाकर उसे माफी दी। So there are many titles to this parable. तो इस दृष्टांत के बहुत सारे शीर्षक है। One can say forgetful Pharisee, कोई यह शीर्षक दे सकता है कि एक भूलने वाला फरोसी or a Pharisee full of doubt. या फिर एक फरीसी व्यक्ति जो संदेह से भरा हुआ है। A Pharisee who wasn't in debt. एक कर्जदार फरीसी Or there people have given a title to this parable, one creditor and two debtors. और लोगों ने यह शीर्षक भी दिया है कि एक लेनदार और दो देनदार। And I will give a title or name to this parable. और मैं इस दृष्टांत को यह नाम दूंगा या शीर्षक दूंगा Parable about the great lover. कि एक महान बड़े प्रेमी के प्रेमी का दृष्टांत। Praise the Lord. प्रभु का महिमा So हो। this was the story of Jesus Christ. तो यह यीशु मसीह की कहानी थी, दृष्टांत था। How he had talked and he had proved himself. यीशु मसीह ने कैसे समझाया और अपने आप की साबिती कैसे दी। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Do again and again listen the word of God and again meditate the word of God. बार बार परमेश्वर के वचन को, संदेश को सुनो और मनन करते रहो। Amen. Amen. Let's close our eyes before and let's ask forgiveness if there is sin we remember. आइए हमारी आंखें बंद करें और यदि कोई पाप है हमें याद आए तो माफी मांगे। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं And Jesus Christ, we believe in you. और यीशु मसीह हम आप में विश्वास करते हैं। You have loved us आपने हमसे प्रेम किया है and we love you. और हम आपसे प्रेम करते We हैं। believe in you. हम आप में विश्वास करते We हैं। don't want to be in doubt. हम संदेह में रहना नहीं चाहते And you have forgiven our sin and so we will love you more. और आपने हमारे पापों की माफी दी है, इसलिए हम आपसे अधिक प्रेम करेंगे। You had called us just because we cannot pay back to you that you know and we know. आपने हमें इसीलिए बुलाया है ताकि हम आपको कुछ वापस दे नहीं सकते हमारे कर्जों के बदले में, और यह बात आप जानते हो और आपने हमें समझाई। And we thank you, Jesus और Christ. यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। Once again, we commit our life in your hand. फिर से एक बार हमारा जीवन हम आपके हाथों में देते हैं। Thank you for forgiving our sin. हमारे पापों को माफ करने के लिए आपका आभार। Give us understanding so that next time we don't be in any debt. हमें बुद्धि दो क्योंकि आने फिर से हम कोई ऐसे कर्ज में ना फंसे। Thank you for your all word. आपके सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद। Who are watching and listening, bless them with this truth. जो लोग देख रहे और सुन रहे उन्हें यह सत्य से आशीष दो। In Jesus' name, Father, we pray. यीशु के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's continue pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done as it is heaven, it be on earth. आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts और हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया, And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है thy is glory. और महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Amen. Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. Thank you for watching. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और देखने के लिए धन्यवाद। Yes, may all by praise the Lord. Thank you.